Good morning, dear students. So, today again we will continue with an integration. In last class we did couple of questions in exercise 3.2a. Now today we'll continue with this lesson only. So in exercise 3.2a, I told you we'll have some problems that I am going to solve. I believe couple of students they have tried or not. So look at this once again, those problems. So this is in type 1. Question number, it is 8. So this I equals to integration of e to the power 2x plus 1 upon e to the power 2x minus 1 into dx. Fine. Now we have to integrate to this. So in this, what happens? There is one way that you adjust plus minus, that way you can also go. Or the smartest way it is, take e to the power x common in numerator and denominator. So this is going to be e to the power x plus e to the power minus x. Fine. And in denominator also, we will take common e to the power x. So this is e to the power x minus e to the power minus x into dx. So now we can cancel this and this. Fine. So what left? This is nothing but e to the power x plus e to the power minus x into dx upon e to the power x minus e to the power of minus x. Now it looks that if we put denominator as a t, we will get the numerator differentiation numerator. Correct? Now suppose if we put e to the power x minus e to the power minus x as a t, look at the derivative. E to the power x is e to the power x and minus e to the power minus x derivative is minus. So this minus minus plus it comes. Fine. And dt by dx. So dx will come this side and dt is here. So now, so what we can write now, this I is now nothing but dt upon t. And all of you know dt upon t is log t plus c. So finally, the answer of this question is going to be log and resubstitute t. T is what? E to the power x minus e to the power minus x plus c. That's it. Correct? So, what is the smartest way? Take e to the power x common, numerator as well as denominator. And then we came to know that if you put denominator as a t, you will get derivative in numerator. So in that case, what happens? Log of t we are taking. So the integration came log t, and which is log e to the power x minus e to the power minus x. Since t we took e to the power x minus e to the power minus x, which is your denominator. Correct? Now we will move to our next problem. I believe this all of you understood. E to the power x I took common, numerator and denominator, and suddenly it appeared that if you put denominator, you will get the log of t integration. Now next problem, look at this. The next problem from there only. This question again from type 1, which is question number 13 in type 1 dear. Question number 30. I equals to integral root tan x upon sin x into cos x. Sin x into cos x into dx. Now this we have to solve. See here, sin x, if we put cos x, we don't have. Cos x, we will put sin x, we don't have. And inside it is root tan x. So in that situation, root we cannot remove. What we will do, we will keep root tan x as it is there, and we will try to make here as a sec square x, so that when you put tan x t, you will get the sec square x dx. Fine. So how we'll make for this? So in this case, we will divide numerator by cos square x as well as denominator also by cos square x. This is what the strategy in this sum. करेक्ट? तो इंटीग्रेशन की साइन इतनी बड़ी कर दें हम. ठीक है. ऐसा करने से क्या मिला? तो मुझे रूट tan x
और ये 1/cos² सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे हमारा साइन कॉस, एक कॉस कॉस गेट कैंसिल, साइन बाई कॉस tan x लेफ्ट। सो ऐसा करने से हमें क्लियर पिक्चर दिख रहा है दैट वी कैन गो फॉर सब्सटीट्यूशन tan x। तो मैं अगर पुट tan x एज ए t, सो मुझे क्या मिल जाएगा डियर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज डी टी। फाइन। तो ये पूरी आई जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो गई किसमें, रूट टी इंटू डी टी, करेक्ट, अपॉन टी। सो एट द एंड व्हाट लेफ्ट, टी टू द पावर -1/2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे, सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ I इक्वल्स टू टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, विच इज नथिंग बट, ये 1/2 हो गया पॉजिटिव, फ्लिप होके ऊपर आएगा 2, और ये रूट टी प्लस सी। हमने टी क्या ले रखा है, tan x, सो द आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ रूट tan x प्लस सी, करेक्ट। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सम। सो ऐसे सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि वी कैनॉट, tan x you cannot take outside from root, so and tan x पुट करना कंपलसरी लग रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर रूट भी थी, पावर थी। तो हमने क्रिएट क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, इस cos स्क्वायर एक्स से, ठीक है, सो दैट रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारा एक cos और एक cos कैंसिल होने से साइन बाई cos tan x मिल गया। एंड देन पिक्चर इट इज क्लियर हियर कि अब हम tan x को t पुट कर दें, सो यू विल गेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच बिकम्स डी टी। सो पूरी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गई इन टर्म्स ऑफ t, विच इज रूट टी अपॉन टी इंटू डी टी, एंड दिस इज नथिंग बट टी टू द पावर -1/2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। So after simplification 2 root t plus c, and finally t को resubstitute किया आपने 2 root tan x plus c। फाइन, ये हमारा tan x था, this is t that we have taken, tan x as a t, resubstitute हो गई, clear। So now I'll move to our next problem, look at this। next problem मैं ले रहा हूँ उसी type 1 से ही, that this question is question number 16। look at this, I equals to dx upon root x plus root of x cube, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। सो अभी रूट एक्स पुट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स तो दिख नहीं रहा, और इसमें कॉमन भी डिफिकल्ट दिख रहा है। तो आप इसको क्या करें, पहले स्टैंडर्ड पावर को पावर फॉर्म में देख लें हम। सो दिस इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2, एंड दिस इज एक्स टू द पावर हाउ मच इट इज 3/2, ऐसा दिखा दिया हमने। अब अगर इसमें से आप एक्स टू द पावर 1/2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, बिकॉज हमें डिसाइड किया है कि रूट एक्स अगर पुट करते हो आप तो 1/2 रूट एक्स मिलता है, तो मैं एक्स टू द पावर 1/2 कॉमन ले रहा हूँ। सो 1 प्लस वी कैन टेक कॉमन 3/2 माइनस 1/2, इट इज़ गोइंग टू बी 1, सो ये 1 प्लस एक्स रह जा रहा है, करेक्ट, बट इट वोंट वर्क, कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। एक्स टू द 1/2 कॉमन निकालने के बाद भी दिस इज़ नॉट, इट इज़ नॉट इंटीग्रेबल, बिकॉज रूट एक्स होता है यहाँ, एक्चुअली मैंने एक्स और 1/2 लिया, तो 3/2 माइनस 1/2 इट इज़ गोइंग टू बी एक्स, सो नो यूज़। सो वी हैव टू चेक क्वेश्चन वंस अगेन कि रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स ही है, यस, एक्स रूट ऑफ एक्स क्यूब है। इसमें एक सिचुएशन और क्या हो सकती है, अगर मैंने रूट एक्स सोचा था तो दिस केम दिस वन, बट रूट एक्स इनसाइड नहीं मिल रही है, तो व्हाट वी कैन डू, 1/2 और 3/2 का एलसीएम हमारा ऐसा कर लें, इसको आप 1/2 और 3/2 है, तो एलसीएम तो हमारा एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। अगर मैं उसको ऐड करूं तो दिस इज एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे वेट इस सम में कुछ तो ट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो विल सी क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। इस सम को अभी होल्ड पे रख देते हैं, ठीक है। इस सम को थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सम आई एम टेकिंग विच इज फ्रॉम टाइप 1 ओनली, क्वेश्चन नंबर 90। देखते हैं इसमें कुछ ट्रिक होगी, वो दैट विल डिस्कस। 19 में डियर क्वेश्चन है i इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ दिस वी हैव टू इंटीग्रेट। सो रूट है तो क्वाइट नेचुरल रूट के अंदर की जो चीज़ें होती है उसको ही हम पुट करते हैं, क्लियर। सो x प्लस 2 को वी आर सपोज टू टेक एज ए t, तो हमने x प्लस 2 को t पुट कर लिया। नाउ डेरिवेटिव हो गया dx इक्वल्स टू dt, dx भी कंफर्म इन टर्म्स ऑफ dt इट केम। नाउ 2x प्लस 1 भी हमें इन टर्म्स ऑफ t चाहिए, so we can frame it. First we'll get x which is t minus 2, then we'll make 2x बना दिया इसको, 2x बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2t minus 4 and then we have 2x plus 1, so 2x plus 1 is 2t minus 3, ठीक है। सो सारे इंटीग्रेशन हमारा इंटीग्रेंड जो है वो इन टर्म्स ऑफ t में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। दिस इज 2t minus 3 and this I have taken root t and this is dt. Now integration is clear, टू कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, t पे ये 3/2 आ गया, 1 and 1/2 and this is dt minus 3 कांस्टेंट आउटसाइड and this is t to the power 1/2 dt. अब अपने को पता ही है फॉर्मूला, वी कैन यूज दोस फॉर्मूला, ठीक है। हम फॉर्मूला से अब इसको इंटीग्रेट कर लें। सो दिस इज 2 इंटू t to the power 5/2 upon 5/2 minus 3 into t to the power ये 1/2 plus 1 3/2 and this is 3/2 plus c. So finally t को रिसब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें इस नंबर को। So we have 4/5, फाइन, t क्या हमने ले रखा है x plus 2 whole to the power 5/2 minus 3 get cancel, 2 times of x plus 2 whole to the power 3/2, ठीक है। दिस इज x plus 2 to the power 3/2 plus c, करेक्ट है। सो इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, इस रूट x plus 2 को t पुट कर लिया, दिस वी हैव केप्ट इट एज ए t, देन dx इक्वल्स टू dt केम, फाइन। देन 2x plus 1 टर्म को हमने इन टर्म्स ऑफ t बनाया विच इज 2t minus 3। सो सारा टर्म जो हो गया इन टर्म्स ऑफ t में आ गई, 2t minus 3 इंटू रूट t एंड देन वी मल्टीप्लाइड एंड बेसिक फॉर्मूला x टू द पावर n के फॉर्मूला से विच वन x टू द पावर n dx के रिजल्ट से इंटीग्रेट कर लिया विच इज x टू द पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस c, जहाँ पे n 1 नहीं होना चाहिए, -1, ठीक है। इस रिजल्ट के हेल्प से वी हैव इंटीग्रेटेड, करेक्ट। चलिए, सो विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, इसी फॉर्मेट के अंदर रहता होगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, टाइप 1 में 22। दिस इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ I equals to 7 plus 4x plus 5x square divided by 2x plus 3 whole to the power 3/2 into dx, करेक्ट। सो अब इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखें जिस पे पावर है यानी 2x plus 3 पे 3/2 है, फाइन। तो हमारा पुटिंग हमने वही सोचना है, ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, उसमें एक को पुट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट करूं तो सो दैट डिवाइड करके हम इंटीग्रेशन को सिंपल भी कर सकते हैं और बाकी के टर्म को इन टर्म्स ऑफ t में कर सकते हैं। सो पुट
2x plus 3 only. Correct? This as a t. Fine? Now, so 2 dx integrate करना पड़ेगा. 2 dx equals to dt. Therefore, dx becomes dt by 3. This is first part. Now, next is इस 2x plus 3 से मुझे न्यूमरेटर के टर्म को इन टर्म्स ऑफ x बनाना है. यहाँ पे मुझे 7 plus 4x plus 5x square चाहिए. तो मैं यहाँ से सबसे पहले x बाहर करता हूँ, तभी x square मिलेगा. And then 5x square we will get. So x is nothing but t minus 3 upon what? 2. What will happen to x square? X square is t minus 3 whole square upon 4. ये x square हो गई. फिर क्या चाहिए अपने को? 5x square. So 5 से इंटू कर दिया जाए. 5 into that is 5 by 4 t minus 3 whole square. Fine. फिर प्लस 4x भी चाहिए. So 5x square plus 4x which is 5 by 4 into t minus 3 whole square plus 4 times of x हमने क्या ले रखा है? t minus 3 by 2. So x is t minus 3 by 2. यहाँ तक पहुँच गए. एंड में हमें प्लस 7 भी करना है. सो 5x square plus 4x plus 7. ठीक है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ t में क्या मिलेगा? 5 by 4 t minus 3 whole square. फाइन. प्लस 4 into t minus 3 by 2 and plus 7. ठीक है. दिस इज प्लस 7. फाइन. क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? इसको मैं फ्रेश ठीक से लिख दूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्टी. प्लस 7. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट दिस इंटायर न्यूमरेटर दिस केम इन टर्म्स ऑफ t. सो अब हम इंटीग्रल के अंदर एंटर करते हैं. सो विच i इक्वल्स टू न्यूमरेटर हमारा ये पूरा है 5 by 4. फाइन. t minus 3 whole square. तो why not we can expand this, या अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए. t minus 3 whole square plus 2 times of t minus 3 plus 7. करेक्ट. अपॉन नीचे क्या है? t to the power 3 by 2. फाइन. और ये dt भी क्या है? dt by 3. फाइन डियर. ये हमारा इंटीग्रल आ गया. ठीक है. अब इसे जनरल अपने इंटीग्रेशन के मेथड से सेपरेटली ब्रेक करना है और फिर इंटीग्रेट करना है. ठीक है. सो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो आप पहले 5 by 4 को बाहर लें कांस्टेंट, इसके अंदर पहले एंटर करें. तो ये टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9. थोड़ा लेंदी सम है ये, तो केयरफुली करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. देन यहाँ पे डियर 2 है, तो 5 by 4 तो केवल इसमें कॉमन लिया हमने. ठीक है ना. तो ऐसा करें, आप इसको भी सेपरेट कर लीजिए. ये t by 3 by 2 अलग कर लीजिए. ठीक है. नाउ हियर यू पुट प्लस. ठीक है. 2 बाहर कीजिए और फिर t minus 3 अपॉन t पे 3 by 2 कर लीजिए एंड प्लस, और ये 1 by 3 कंप्लीट बाहर है तो उसको भी हम एंड में बाहर कर लेते हैं. और ये 7 कांस्टेंट है dt. ये आ गया. और ये पूरा इंटीग्रल किससे इंटू हो गया होगा? ये dt by 3 है ना, 1 by 3 मैंने यहाँ बाहर लिख दिया. नाउ अब आप डियर इसको सेपरेटली पावर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे. तो पहले हमारे पास कांस्टेंट जो है सब बाहर लीजिए. 1 by 3 5 by 4, तो ये आ गया डियर 5 by 12. दिस इज 5 by 12. इंटीग्रल ये 1 by 3 सब में इंटू है. हाँ. t पे पावर इधर माइनस कर लीजिए. 2 minus 3 by 2, so that is 1 by 2. ठीक है. dt सेपरेट अप करते जा रहे हैं. 5 by 4 को कंप्लीट इससे बाहर रखिए. देन माइनस 6 कॉन्स्टेंट आउटसाइड. t पे 1 minus 3 by 2, so ये minus 1 by 2 into dt
प्लस 9 है हमारा, तो ये हो गया 9 कांस्टेंट टी पे माइनस 3/2 इंटू डी टी। ठीक है, ये अपना पहला 5/12 का टर्म है। ठीक है, अब आप 2/3 के साथ आए, प्लस 2/3 प्लस 2/3 इंटीग्रल, इसको सेपरेट करें, टी पे 1 माइनस 3/2, दिस इज 1 माइनस 3/2, इट इज माइनस 1/2 dt, दिस इज dt, और ये -3 बाहर लिया जाए, कांस्टेंट सेपरेट कर रहे हैं, 2/3 पहले से है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 ओनली। ठीक है, और ये ऊपर आ गया 10 टी पे -3/2 माइनस इंटू डी टी। क्लियर, एंड दिस इज प्लस 7/3 कौन 3 भी है। ठीक है, देखिए ये t/3 और इसका 3 कैंसिल हो गया, इसलिए -2 रह गया, और ये 7/3 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t। फाइन, अब आप, मेरा बिलीव है कि यहाँ से आप इंटीग्रेट कर लेंगे एंड यू मैच द आंसर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ से आंसर आप कर लीजिए। आई ऑलमोस्ट डन 99% पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आप सारे इंटीग्रेट कर लें, 1/2 का इंटीग्रेशन -1/2 केयरफुली, और आंसर चेक कर लीजिए विच इज़ द करेक्ट आंसर। समटाइम्स 2 टर्म सेम आएंगे तो उसको आप एलसीएम लेके एक टर्म कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आप टेक्स्ट बुक से मैच कर लीजिए, पहले आप सॉल्व कर लीजिए एंड मैच द आंसर। सो मैं मेथडोलॉजी बताना चाह रहा था कि क्या बेसिकली होती है इस तरह के प्रॉब्लम में। यहाँ पे कोई दूसरा स्पेशल इंटीग्रल भी काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज 2x + 3 पे पावर 3/2 था, सो दैट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक। दैट इज वाई व्हाट वी डिड, वी पुट फर्स्ट t, इसको मैंने t पुट कर दिया, फिर x बनाया, फिर ये न्यूमरेटर को तैयार किया इन टर्म्स ऑफ t में, और फिर डिवाइड बाई टी टू 3/2 सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेना है इसको, और यहाँ से आप एंड का पोर्शन जो है इंटीग्रेट करिए, और वापस t की वैल्यू 2x + 3 रीसब्स्टिट्यूट करके यू कैन मैच द आंसर। ठीक है, आई बिलीव इतना आप कर सकते हैं, इस लेवल पे आपकी इंटीग्रेशन अच्छी हुई होती है, तो यू कैन डू इट करेक्ट। नाउ आई एम मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, लुक एट दिस। The next problem I am taking from type 2. In fact type 1 में ही है एक दो प्रॉब्लम और, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये दिस इज इन फ्रॉम टाइप 1 ओनली। I equals to x² upon √9 - x⁻6 इंटू dx। ठीक है, सो अब यहाँ ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं इस एक्सिस, अपने को एक इंटीग्रेशन पता है साइन इनवर्स में, पता है dx अपॉन √1 - x², ये होता है साइन इनवर्स x का, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² इज साइन इनवर्स x। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे 1 - x² चाहिए, तो पहले हमें 9 कॉमन लेना पड़ेगा, करेक्ट, तभी यहाँ 1 आएगा, क्योंकि अभी मैं स्पेशल इंटीग्रल तो स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले डेयर इसके अंदर x² dx, यहाँ पे मैं 9 कॉमन लिया तो यहाँ 3 बन के बाहर आएगा, and this is going to be 1 minus x6, ठीक है, by 9, करेक्ट। ये क्लियर हुआ, x6/9 हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे पुटिंग जो करेंगे, पुटिंग हमारा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। फॉर्मूला में 1 - x² है, यानी 1 - t² दिखना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ पुट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, x³ अपॉन 3 को t पुट करूँगा। लुक एट दिस, अगर आप स्क्वायर करोगे तो x6/9 हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट भी था 1 - x² बनाना। ठीक है, सो दैट ये t² बन जाएगी। तो x³/3 को मैंने t पुट किया, तो अब डेरिवेटिव है 3x² / 3
into dx equals to dt, which implies x square dx is equals to dt. Fine, up till here clear? Now let's see what will happen to I में क्या चेंजेस हो गए अब सब कुछ इन टर्म्स ऑफ टी में. सो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हमारा डेयर डी टी बन गया. फाइन, 1/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और इनसाइड इन अ रूट वी गॉट 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, सी द स्ट्रैटेजी कैसे आपको फॉलो करना है. करेक्ट, ये हम स्पेशल इंटीग्रल में भी ये सम कर सकते थे. जब आपको स्पेशल इंटीग्रल की जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. उस अप्रोच से भी ये सम किया जा सकता है, बट वो स्पेशल इंटीग्रल जब मैं एंटर करूँगा तो आप समझ सकते हैं. फाइन, सो एट द एंड डियर यहाँ फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/3 साइन इनवर्स टी प्लस सी. करेक्ट, so which is nothing but 1/3 साइन इनवर्स t. क्या है हमारा t? हमने लिया है x³/3. क्लियर? प्लस c. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, गो थ्रू कर लीजिए फटाफट क्विकली, क्योंकि वी हैव नॉट येट स्टार्टेड स्पेशल इंटीग्रल. तो हम इस सब्सटीट्यूशन में ही हैं, तो हमने थोड़े दिमाग लगा के, क्योंकि अभी तक हमने ये रिजल्ट देखा है सब्सटीट्यूशन के अंदर डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स था, जो हमारे टेबल में ही था. तो हमने उस अकॉर्डिंग 9 को बाहर लिया कॉमन, तो वो 3 1 के बाहर आया, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6/9. देन वी टुक अ डिसीजन दैट कि x³/3 ही t आना चाहिए, सो दैट यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. फाइन, जो आपको यहाँ दिख गया. फाइन, so उस पर्पस के अकॉर्डिंग वी मूव, and what will happen after differentiation, 3 get cancelled, x square dx came dt, and then we substituted everything in terms of t to this integral 1/3 constant dt upon root under 1 minus t square. Fine, and then it came 1/3 sin inverse t result, and finally t को resubstitute कर दिया, 1/3 sin inverse x³/3 plus c. Fine. So I think all of you understood this problem. This is without special integral. हमने इस problem को solve किया है. ठीक है? Now we'll move to our next problem. Look at this. So the next problem, which is question number 25, I am taking of type 1. 25 type 1. I equals to integral dx upon x log x into log of log x. Correct? This is the integration. Now we have to find the solution of this integration. Now look at this, किसको पुट करना चाहिए और क्या पुट करना चाहिए, that is very important here. अगर मैं केवल log x को t पुट करता हूँ तो यहाँ नीचे log t रह जाएगा. करेक्ट? If I put log of log x इस टोटल को as a t, then we'll see what will happen. So let's put log of log x is equal to t. ये पुट किया, सो डेरिवेटिव देख लें, 1 अपॉन log x इंटू, फिर log x का क्या होगा डियर, 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. सिंस डी टी बाई डी एक्स मैंने यहाँ ले लिया. फाइन, सो नाउ लुक एट द इंटीग्रल, वो इन टर्म्स ऑफ टी में कैसे इट लुक्स लाइक नाउ. सो डी एक्स इज दिस मच पोर्शन, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये कितनी होगी, डी टी. दिस इज डी टी, एंड अपॉन दिस यू हैव टेकन एज ए टी, लॉग ऑफ लॉग एक्स हमने टी लिया है, दिस इज डी टी अपॉन टी. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी. फाइन, दिस इज लॉग टी प्लस सी. अब फाइनली आप टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें.
दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. सो log ऑफ t क्या लिया आपने, log ऑफ log x, फाइन, प्लस c. दैट्स इट. सो इस तरह के सम आपने एनडीए के प्रिपरेशन में भी किए थे और आपके 12th बोर्ड में भी इस तरह के प्रॉब्लम हैं. तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. फाइन. Can we go ahead? Now I am taking the next problem. Look at this. वो एक सम पीछे रह गया, उसको चेक करेंगे थोड़े. उसमें मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन के अंदर पावर्स का है. अगर वो उसमें 3/2 पावर होगी तो हम वी कैन एबल टू डू इट. विल चेक दिस. चलिए नेक्स्ट आते हैं डियर. ये हमारा टाइप 2 इन द सेम लेसन एक्सरसाइज 3.2. टाइप 2 में आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. I equals to cos 3x minus cos 4x upon sin 3x plus sin 4x into dx. ठीक है. This is the question. Now we have to integrate this. So ये पहले ऐसा दिख रहा है कि ये डायरेक्ट हमारे cos c माइनस cos d और sin c प्लस sin d फॉर्मूला अप्लाई की जाए तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाएगा. सो व्हाई नॉट, वी विल यूज दोज फॉर्मूला. ऑल ऑफ यू अवेयर, व्हाट यू अवेयर, cos c minus cos d which is 2 sin c plus d by 2 into sin into this is into sin d minus c by 2. This is the formula of cos c minus cos d. And sin c plus sin d, all of you aware this is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. So with the help of these two formula we can proceed here. ठीक है. So cos c minus cos d हमने अभी यहाँ क्या लिख दिया, 2 sin c plus d by 2 7x by 2 into sin d minus c by 2. So this is going to be sin x by 2. डिनोमिनेटर में देख लें, sin c plus sin d which is 2 sin c plus d by 2 which is sin 7x by 2 into cos c minus d by 2 which is cos x by 2. Actually it came minus, but cos minus theta, all of you know cos minus x by 2 is nothing but cos x by 2 because cos minus theta is positive cos theta. Cos function is even function. So now what will happen, 2 get into dx, 2 get cancelled, 1 sin get cancelled, sin x by 2, left with tan x by 2. And all of you know the integration of tan x by 2 is log sec x by 2 and x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, 1/2 से divide plus c. So finally the answer of this integration will be 2 times of log sec x by 2 plus c. ठीक है. Only you have to use trigonometric formula because sum and difference में था तो factorization formula is important here. I have also mentioned these two formula also, cos c minus cos d, sin c plus sin d. ये दोनों वो use करके at the end tan x by 2 and you know the integration of tan x by 2 log sec x होता है tan x का, but यहाँ x by 2 1/2 x का कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड हो जाएगा 1/2 से. So it flipped and 2 times of this came. Clear? So this is your type 2 का first question हमने देखा dear. I think it's a doable problem. All you can do it. इस तरह की जब भी सिचुएशन हो. बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थिंग यहाँ पे कॉस कॉस और साइन साइन सेम हो तभी फैक्टराइजेशन यूज़ कर पाओगे. अगर कॉस की जगह साइन कर दिया होता न्यूमरेटर और साइन कॉस तो मुश्किल होता. उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक होगी. फाइन. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. लुक एट दिस. ये बड़ा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है हमारे इस बोर्ड के लिए.
Question number 2, type 2, question number 2. I equals to integral cos x dx upon sin x माइनस ए. ठीक है, sin x माइनस ए, ये इंटीग्रेशन है. अब इसे इंटीग्रेट करना है. तो इस टाइप का मैंने एनडीए में भी कराए थे, फिर भी एक बार रिकैप कर लीजिए. सी हमें डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है, साइन एक्स माइनस ए हैव टू कीप एज इट इज एज. हम न्यूमरेटर के अंदर हम इस एंगल को फॉर्म करेंगे. तो x माइनस ए फॉर्म किया तो प्लस ए देंगे, देन ओनली ये cos x दिखेगा. करेक्ट. एंड देन अपॉन दिस इज साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स. दिस इज वॉट फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू. और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रॉब्लम का. अगर आपने ये कर लिया 90% वर्क इज ओवर. नाउ अब इस x माइनस ए और प्लस ए में इसको मैं a चूज करूंगा और इसको b चूज करूंगा. cos a प्लस b का फॉर्मूला न्यूमरेटर में एक्सपेंड कर दूंगा. सो cos a इंटू cos b माइनस sin a into sin b. All of you know this basic formula. Cos a minus b is, sorry, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. ठीक है, and upon this is sin x minus a और ये dx है into. ठीक है, लेंथ into width. अब आप सेपरेट कर लें. ठीक है, आफ्टर सेपरेशन व्हाट विल हैपन. जब आप सेपरेट करेंगे तो ये cos a कांस्टेंट हो गया. मैं यहाँ पे ऐसा लिख ही देता हूँ, cos a को कांस्टेंट को बाहर ही कर लेता हूँ. सो फर्स्ट cos a कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर आया तो cos अपॉन साइन क्या हो गया, cot x माइनस a इंटू डी एक्स माइनस साइन साइन गेट कैंसिल, लेफ्ट विथ साइन ए इंटू डी एक्स. ये भी बाहर हो जाएगा बिकॉज साइन ए कॉन्स्टेंट है. सो द नेक्स्ट स्टेप, cos ए इज कॉन्स्टेंट, cot का इंटीग्रेशन हो गया डियर log साइन एक्स, log साइन एक्स. फाइन, क्योंकि यहाँ कुछ डिवाइड करने को है नहीं, x का कोफिशिएंट 1 है, तो ओनली log साइन एक्स माइनस ए विल लेफ्ट minus sin a is constant which is outside and integration of dx, all of you know, x and plus c. That's it. Look at this, cos x upon sin x minus a. So इसमें हमने क्या बोला, never touch denominator, you keep it as it is as it is as. Only you change in numerator. Try to make same angle of denominator, same angle. So look at this x minus a, एक एटलीस्ट x माइनस ए तो दिखा, प्लस ए. देन हमने cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लिया, cos a प्लस b फॉर्मूला वी हैव यूज्ड. ठीक है, एंड देन सेपरेट किया, सम टर्म गेट कैंसल and left with these terms where you know those integration. Cot x minus a log sin x minus a, sin a constant dx का integration x. ठीक है, so this way we can solve such problems. Correct. तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद से ट्राई करेंगे, इसी फॉर्मेट पे है. आई बिलीव यू कैन डू इट. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क लिख लीजिए, आप खुद से करेंगे. Next, I am moving to next problem. Look at this. The next problem is question number 5. Type 2. I equals to sin x plus 2 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x.
ठीक है डियर, दिस इज द प्रॉब्लम इनटू dx। सो अब इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होती है कि साइन पुट करें कॉस पुट करें, क्योंकि कोई भी इनटू में तो है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फॉर्मेट होती है। इस फॉर्मेट पे पहले वाले जब टेक्स्ट बुक हुआ करती थी तो उसमें उन्होंने फॉर्मेट भी दिया था, इस टेक्स्ट बुक में भी होगा, आई एम नॉट श्योर। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है, पहले मैं वो फॉर्मेट लिखता हूँ। न्यूमरेटर को वी कैन राइट a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जैसा फंक्शन हो, x का फंक्शन है तो डी डी एक्स कर लीजिए, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। करेक्ट, यानी न्यूमरेटर को हमने इसमें स्प्लिट करना है। अगर आप न्यूमरेटर को ऐसा स्प्लिट करते हैं और a और b यू फाइंड, सो a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे आपको, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अगर मुझे ये a और b मिल गया तो मैं न्यूमरेटर को इसमें स्प्लिट कर दूंगा। नाउ द पर्पस इज टू डूइंग दिस, if we put this numerator a into derivative of denominator plus b into denominator, look at this, what will happen? नीचे का डेरिवेटिव मिल गया तो लॉग हो जाएगा, b into denominator किया आपने तो denominator get cancel, correct? So this is the purpose to split numerator into in this format। ये इंटीग्रेशन के फॉर्म के अंदर भी आता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक और फॉर्म आगे भी आएगा, वो हम टाइप डिस्कस करेंगे आगे के लेसन में, इसी सिमिलर अप्रोच में। ये हमें और भी कुछ सम्स को की ओर ले जाता है, जैसे आपके इस टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये चारों सम इसी फॉर्मेट पे है। तो मैं 5 और 9 करूँगा, 5 और 9 करूँगा, रिमेनिंग 6, 7, 8 यू कैन डू योर सेल्फ। इसी फॉर्मेट पे है, अगर आप अच्छे से पूरी फॉर्मेट को देखते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन विथ दिस फॉर्मेट। ठीक है, सो विल प्रोसीड द सोल्यूशन। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, यहाँ पे लेट लिख दीजिए, लेट टू, इनफैक्ट साइन एक्स है ना, इसको हटा दीजिए, लेट साइन एक्स प्लस 2 cos x is equal to a into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 3 sin x प्लस 4 cos x। क्लियर, दिस इज डिनोमिनेटर। अब यहाँ से अपने को a और b के वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या क्या हो गई पता चला, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर b इंटू 3 sin x plus 4 cos x। Now to get the value of a and b, what we will do, we will equate the coefficient of sin x and cos x, equating the coefficients of sin x and cos x, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। अगर यहाँ पे sin x cos e टू दी पावर x रहेगा, जैसे मैं e टू x वाले प्रॉब्लम में आऊँगा, तो वहाँ हमें ऐसे करना होगा। सो फ्रॉम हियर इन दिस केस विल इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x। सो लुक एट दिस, लेफ्ट हैंड साइड में sin x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, दिस इज 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या दिखा अपने को, a इंटू माइनस 4 5 प्लस 3b। ठीक है, इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कर ले रहे हैं, या स्लिप हो रहा है, इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में sin x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दिस इज 1, एंड राइट हैंड साइड में a इंटू माइनस 4 प्लस 3b। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ cos x देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज 2। राइट हैंड साइड को देख लें, कोफिशिएंट ऑफ cos x 3a, फाइन, एंड देयर इट इज प्लस 4b।
3a plus 4b. This is equation 2. Now we will solve these two equations to get the value of a and b. अब a and b निकल आएगा, then we'll put numerator. So to solve this a and b, look at this, minus 4a plus 3b equals to 1. तो solve कर लिया जाए फटाफट, रफ में इसको solve कर लेते हैं. हमारे पास डियर क्या है, माइनस 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एंड 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 2. सॉल्व किया जाए इसको अगर आपने 3 से इंटू कर दिया और इसको 4 से इंटू कर दिया और ऐड किया तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये कैंसिल हो जाएगा. 9 प्लस 16 25b is equals to 3 plus 8 11. So b we will get 11 by 25. Now how will you get a? Substitute कर दें आप, तो अपने को b पता लग चुकी है, ये है माइनस 4a प्लस 33 by 25 3b equals to 1. So therefore minus 4a equals to 1 minus 33 by 25. This will come minus 8 by 25. Therefore a will be positive 2 by 25. So a confirm, b confirm. Now we will write numerator where a and b we came to know. a और b हमें पता लग गई. So अब मैं न्यूमरेटर लिखता हूँ. क्या मिला अपने को न्यूमरेटर? Look at this. This is sin x plus 2 cos x. So in place of sin x plus 2 cos x, we will write this one where a and b we know right now. We know now a and b. So look at this. I equals to numerator a we have 2 by 25. 3 cos x minus 4 sin x plus b we have 11 by 25 into 3 sin x plus 4 cos x. ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर हमारा जो भी लिखा हुआ है, दिस इज 3 sin x plus 4 cos x. 3 sin x plus 4 cos x. ठीक है, और इंटू dx. फाइन हियर. नाउ अब आप सेपरेट कर लीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए. 3 by 25, 2 by 25 is constant outside. दिस और दिस अलग करोगे तो इसका डेरिवेटिव अपने को ये मिल रहा है 3 cos minus 4 sin x. सो मैं डायरेक्ट लॉग लिख दूँ, लॉग ऑफ 3 sin x plus 3 sin x. Wait, this is 3 sin x dear. 3 sin x plus 4 cos x. करेक्ट, लॉग हो गया, प्लस 11 by 25 कांस्टेंट और 3 sin x plus 4 कैंसिल हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज x, ये x रह गया, प्लस c. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. थोड़ा केयरफुली करो, दीज आर लेंदी प्रॉब्लम, बट व्हेन यू डू प्रैक्टिस यू विल, आप भी कम टाइम में कर पाओगे. ठीक है, तो sin x plus 2 cos x upon 3 sin x plus cos x. So we have this format, numerator equals to a into derivative of denominator plus b into denominator. तो न्यूमरेटर हमारे पास sin x plus 2 cos x था, इसको हमने a इंटू डिफ्रेंशिएट किया प्लस b इंटू डिनोमिनेटर. और a और b की वैल्यू कैसे निकाली गई? बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. हमने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ sin x एंड cos x. दैट वी कैन डू. तो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आए, माइनस 4a प्लस 3b इज 1 एंड 3a प्लस 4b इज 2. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b एज वेल एज a. ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू कैलकुलेट की गई, एंड देन वी पुट इन द न्यूमरेटर दिस a एंड b की वैल्यू. ठीक है, एंड देन वी सेपरेट इट.
correct? And this is the answer. Clear? So we'll see next problem in the same type in the next video, dear. Clear? So meanwhile, go through this first video and any doubt, let me know. Correct? In second video, we will do some more problems, dear.